आज का हमारा टॉपिक है पाइजन एंड लेप्लास इक्वेशन एंड दिस इज द टॉपिक फ्रॉम अ बुक ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जेडी जैक्सन। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, लेट मी रिकॉल अ फ्यू टॉपिक क्विकली जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। इफ यू रिकॉल, we have studied Gauss's law, that is integral of E dot dA is equals to 4 pi k and a volume charge density or the differential volume. और ये जो प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके इल्म में है कि the prime coordinates corresponds to the source charge, और इसी चीज को इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन डिफरेंशियल फॉर्म you can write del dot E is equals to 4 pi k into volume charge distribution. Keep in mind that k is the Coulomb constant, जिसकी वैल्यू होती है 1 over 4 pi epsilon naught. And in addition to these two equations, we have also studied the electric potential, which is depend on position coordinates, can be written as k qi over x minus xi, and the summation is over the ith charge. And the same equation can also be written for the continuous case. Integral, of course, volume integral, Coulomb constant, charge distribution, and differential volume divided by x minus x prime. So ये जो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कहा था कि दिस इज द प्राइम कोऑर्डिनेट्स, और उसके अंदर आप एक कोई भी छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लें. सो दिस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, इसको हमने कहा है कि दिस इज द प्राइम वेक्टर एक्स प्राइम, और इसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं या इनफैक्ट फील्ड निकालना चाहेंगे, जिसको आप पी पॉइंट कह सकते हैं, तो ये जो वेक्टर है दैट इज एक्चुअली x माइनस एक्स प्राइम. किस तरह से? बिकॉज फ्रॉम द ओरिजिन ये जो फ्रॉम द ओरिजिन ये जो चार्ज डेंसिटी है दैट करस्पॉन्ड्स टू द एक्स प्राइम वेक्टर, और एक वेक्टर आप और डिफाइन करते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज एक्चुअली x, so that we have this vector can be written as x minus x prime. तो इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड can also be written in terms of electric potential. So electric field is nothing but a variation of electric potential.
That means E can be written as minus gradient of scalar potential. और इस बुक के अंदर चूंकि पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया है तो मैं इस बुक के नोटेशन के लिहाज से फाई लिखता हूं, बट कीप इन माइंड दिस इज अ पोटेंशियल is a function of space coordinate. And also electric field in terms of prime coordinate हमने इस तरह से भी define किया था कि if you have volume charge density then you can write K rho x minus x prime x minus x prime mod of cube and volume and differential volume. And interestingly enough, this electric field can be written in terms of path integral. That is any closed path integral. So E dot dl would be 0. और अगर यहाँ पर आप स्टोक थ्योरम इस्तेमाल कर लें that leads to del cross E is going to be 0. And this leads to a very important characteristic of electrostatic field. We call it a conservative field. So these are the topic that we have covered in the last class. Let me start our today's topic, which is Poisson and Laplace equation. And this topic started from the fundamental equation of the electrostatic field that I already mentioned, that the electric field is nothing but the variation of electrostatic potential. That means E can be written as minus gradient of electric potential. And if you apply the divergence on both sides, so del dot E is equals to del dot del phi of x, or del dot del का मतलब होगा del square, because this is this vector identity. पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है आप उसका स्क्वायर लिख देते हैं, तो बिल्कुल इसी हवाले से यहाँ पर भी आप इसको डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स कर देंगे. And we also know that divergence of E is equals to 4 pi k into rho. जो अभी हमने इससे पहले जब हम रिव्यू कर रहे थे तो हमने ये बताया था. This is nothing but the differential form of the Gauss's law. तो इसको अगर आप यहाँ पर रख देंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर,
सो हमें एक इक्वेशन मिलेगी विच इज del square phi of x is equals to minus 4 pi k into rho. And of course, rho is a function of space, similar as the potential is a function of space. So this is a very important equation. And in fact, we call this is a Poisson equation. And if we consider the region where no charge density, in the region of rho of x is equals to 0, therefore the above equation can be written as del square phi of x is equals to 0. So this equation is called, in fact, Laplace equation. तो ये दो इक्वेशन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि जब हम शुरू की क्लासेस में मैक्सवेल इक्वेशन को हमने रिव्यू किया था तो उस वक्त भी हमने इसकी सिग्निफिकेंट के ऊपर बहुत डिटेल के साथ बात की थी कि कहाँ पे हम इन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तसर तौर पर मैं दोबारा से बता देता हूँ, यानी अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी गिवन है एंड इफ यू नीड टू डिटरमिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उस हवाले से जो कूलम लॉ मौजूद है आप उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस we don't have value of charge density. Instead, we given boundary values. तो in fact boundary value से मुराद है कि boundaries के ऊपर हमें या तो potential given होता है या उसका first derivative given होता है। In fact potential का जो first derivative है वो electrostatic field के बराबर होता है। तो अगर boundaries पे हमें potential या फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है तो उसकी मदद से विद इन द बाउंड्री हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं और उसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। और इस काम को करने के लिए आपको या तो पाइजान इक्वेशन का सहारा लेना होगा या फिर लेप्लास इक्वेशन का सहारा लेना होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और इसकी मदद से हम एक और अहम चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, यानी इफ रॉ ऑफ एक्स इज गिवन, the value of electric potential can be determined as follows. K integral rho of x prime divided by x minus x prime into differential volume. So in fact ये जो हमने ऊपर पाइजान और लेप्लास इक्वेशन ड्राइव किया है और अगर पोटेंशियल की वैल्यू ये है जो कि कूलम लॉ से हम हासिल करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस वुड बी
the solution of Laplace equation. अच्छा, इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि हमने किसी स्टेज के ऊपर डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल किया था, और आपके इल्म में है कि डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल हमने उस वक्त किया कि जब आपके पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मौजूद थी और you need to pick up a point charge from that volume charge density. So in order to do this, we have used delta function. और डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? Define delta function डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने चार्ज डेंसिटी को लिखा था इन टर्म्स ऑफ डेल्टा फंक्शन q टाइम डेल्टा फंक्शन x माइनस x प्राइम। और ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो डेल्टा फंक्शन की डायमेंशन थी वो 1 ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अगर इसकी डायमेंशन 1 ओवर वॉल्यूम है और चार्ज की डायमेंशन कूलम है, तो कूलम पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ओके, सो इफ दिस इज ट्रू, then we can replace this charge density in Poisson equation. So use this in Poisson equation so that we have Poisson equation in terms of delta function. So del square phi of x, Poisson equation हमारे पास है minus 4 pi k rho, और इसकी जगह पे मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन रख दूं तो फिर ये हो जाएगा 4 pi k q into delta function x minus x prime. And now let me substitute the value of this phi from the Coulomb law, but phi of x is equals to k q over x minus x prime. तो इसको अगर आप यहाँ पर substitute कर देंगे, that means here, so del square k q over x minus x prime is equals to minus 4 pi k q delta function x minus x prime. तो यहाँ से अगर गौर करें तो ये के क्यू और के क्यू कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट डेल स्क्वायर
1 over x minus x prime is equals to minus 4 pi delta function x minus x prime. So ये एक अहम आइडेंटिटी हमने यहाँ पे प्रूव किया है जिससे हम आगे इस्तेमाल करना चाहेंगे. इसे आप किसी जगह पर नोट करें. But keep in mind that according to the delta function, if x does not equal to x prime. So if you recall the delta function, अगर ये जो x prime है ये x के अलावा कोई होगा तो फिर उस सूरत में that leads to the delta function x minus x prime is going to be 0. So that the above equation del square over x minus x prime is equals to 0. And this can be checked very easily mathematically. इस वेक्टर को अगर आप डिफाइन कर सकें तो उसके बाद हम ये प्रूव भी कर सकते हैं. तो एक तो हमने इसको लिखा है बाय यूजिंग one of the properties of the delta function. So, and now let's check whether this equation is true or not. Let's check the above equation. और उसके लिए हमें ये करना होगा कि डेल स्क्वायर को 3 डायमेंशन में हमें लिखना होगा. इफ यू रिकॉल, ये जो डेल स्क्वायर है ये बराबर होता है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर. बस चूंकि जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर नोटेशन का चूंकि थोड़ा फर्क है, तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड को x1, y1, x1, x2 और x3 कहा गया है. तो मैं यहाँ पर ये जो x है इसको रिप्लेस कर रहा हूँ x1 से, and y replace it to x2 and z replace it to x3. और ये जो है इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ. लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप मैं इस डेल स्क्वायर को जरा ओपन करके लिख दूं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ओवर डेल x1 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल x2 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल x3 स्क्वायर और उसके साथ 1 ओवर x माइनस x प्राइम मॉड इज इक्वल्स टू 0. इनफैक्ट इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए. तो अब इसको आपने सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए जाहिर है आपको 3 स्टेप में करना पड़ेगा. डेल स्क्वायर ओवर डेल x1 स्क्वायर को पहले आप इस पे अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में डेल स्क्वायर ओवर डेल x2 स्क्वायर को अप्लाई करेंगे एंड सो ऑन. तो मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को ले रहा हूँ और देखिए इसकी क्या सूरत बनती है.
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब मैं इस इक्वेशन को कैरी नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट इसमें 2 दफा डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है। एक दफा इसके ऊपर कर दीजिए और एक दफा मैं एज इट इज इसको पहले अपने पास लिख ले रहा हूँ और एक डेरिवेटिव मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये बेसिकली बराबर होगा 1 ओवर x माइनस एक्स प्राइम जो है, क्योंकि ये जो x है इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 माइनस x1 प्राइम स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 प्राइम स्क्वायर प्लस x3 माइनस x3 prime square and half। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपके पास अगर कोई वेक्टर हो तो उसका जो मॉड है वो लिखने का क्या तरीका होता है। तो इसको अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक दफा जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके सामने, और ये इनफैक्ट ये नीचे है, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा ये। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ये चलें पहले मैं एक दफा इसको लिख लेता हूँ। इसको ओवर x1 और x1 माइनस x1 प्राइम प्लस x2 माइनस x2 प्राइम प्लस x3 माइनस x3 प्राइम स्क्वायर, और इसकी जो टोटल पावर होगी वो हो जाएगा माइनस हाफ। ओके, तो एक दफा मैं इसको अगर अप्लाई कर दूं तो पार्शियल ओवर पार्शियल x1 और माइनस हाफ और ये पूरी चीज एज इट इज आ जाएगी, x1 माइनस x2 x1 माइनस x1 प्राइम स्क्वायर प्लस बाकी भी 2 टर्म्स आ जाएंगी, मैं इसको नहीं लिख रहा, और पावर हो जाएगा इसका माइनस हाफ माइनस 1। उसके बाद फिर जब इसके अंदर आर्गुमेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो यानी इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ओवर पार्शियल x1, तो ये जो पावर है इसको आप लिखेंगे पहले, और उसके बाद फिर x1 माइनस x1 प्राइम एंड दिस वुड बी 2 माइनस 1, और उसके बाद इसके आर्गुमेंट का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला पार्ट तो प्राइम कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x1। सो दिस वुड बी 1। पार्शियल ओवर पार्शियल x1 को जब आप इस चीज के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो द होल ब्रैकेट इज गोइंग टू बी 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टर्म नहीं लिखी, लेकिन उन दोनों टर्म्स का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, और
वैसे भी ये इसको 0 होना ही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। सो इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लीजिए। इनफैक्ट ये 2 जो है ये यहाँ से कैंसल हो जाएगा और पार्शियल ओवर पार्शियल x1 माइनस 1 को यहाँ पे लिख लीजिए और इसकी पावर हो जाएगी x माइनस x1 प्राइम प्लस यहाँ पे 2 टर्म्स और आएंगी एंड द पावर वुड बी -3/2 और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x माइनस x1 प्राइम 2 माइनस 1 वुड बी 1 और ये 1 यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अंदर जो है ये अभी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ये किसके बराबर होगा? So this would be written as partial over partial x1 माइनस इसको जब आप लिखेंगे या इसको चलें और आसानी के लिए हम ये लिख देते हैं x1 माइनस x1 प्राइम half and -3 x1 माइनस x1 प्राइम। तो ये जो चीज़ है ये इनफैक्ट अभी ऊपर इसका जिक्र आया है, ये बराबर हो जाएगा x माइनस x प्राइम और इसकी पावर है -3 and we have x1 minus x1 prime। इसको आप और आसानी के लिए लिख लें, दिस वुड बी माइनस, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ और ये टर्म मैं लिख रहा हूँ माइनस x1 माइनस x1 प्राइम डिवाइडेड बाय x माइनस x प्राइम 3। ये एक चीज आ गई है और इसके ऊपर हमने एक दफा डेरिवेटिव और अप्लाई करना है। कीप इन माइंड x1 ऊपर भी है और x1 यहाँ पर भी है। इनफैक्ट एपरेंटली नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे, यानी यहाँ पर इस तरह ओपन किया हुआ है तो x1 मौजूद है। सो बोथ आर वेरिएबल, सो u और v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर u और v का जो फॉर्मूला हुआ है वो आप टेल में है कि नीचे ये हो जाता है x माइनस x प्राइम पावर 2 होता है, तो 3 पहले से मौजूद है तो ये तो हो जाएगा 6। उसके बाद फिर आप लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस x1 प्राइम और सेकंड फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेना है, इनफैक्ट इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू x माइनस x प्राइम पावर 2 और फिर उसके बाद माइनस एंड देन आप लिखेंगे x माइनस x प्राइम पावर 3 और जब आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनफैक्ट मैं इसको 2 अलग-अलग टर्म में भी लिख रहा हूँ। तो जब फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो देखिए ये वाली टर्म जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इनफैक्ट ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और नीचे पावर बच जाएगा 4।
और माइनस भी है, तो माइनस x माइनस x1 प्राइम डिवाइडेड बाय x माइनस x प्राइम पावर 4, और ये माइनस जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस वुड बी प्लस, एंड यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x माइनस x प्राइम 3। इनफैक्ट ये 3 भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये दो टर्म्स यहाँ पे मिली हैं, जिससे हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और ये ज़हन में रहे कि वहाँ पर इसी तरह की 2 + 2 4 टर्म्स और आएंगी। So now let's get back to equation number 1, and this would be del square x minus x prime is equals to, अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 x1 minus x1 prime x minus x prime power 4 plus 1 over x minus x minus x prime power 3। इनफैक्ट ये मैंने ब्रैकेट लिख दिया है, बट कीप इन माइंड दिस इज द मॉड, इसको आप मॉड कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट टर्म आई है। बाकी दोनों टर्म्स के लिए भी आप यही स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इनकी मदद से वो दोनों टर्म्स भी लिख सकता हूँ। जब आप उसका जो 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 और 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3, तो आपके पास इस तरह की 2 + 2 4 टर्म्स और आ जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर उन बाकी टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 3, ये हो जाएगा x2 minus x2 prime and x minus x prime 4 plus 1 over x minus x prime 3। इसी तरह से दो टर्म्स और आ जाएंगी, 3 into x3 minus x3 prime or x minus x prime power 4 plus 1 over x minus x prime power 3। अब मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें, एलसीएम वगैरह लें। So all of these terms will be cancelled out and this leads to 0। तो ये हमने डेल्टा फंक्शन की मदद से भी इसको 0 कर लिया था, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इसको 0 के बराबर कह सकते हैं। So this is nothing but a form of the Laplace equation, and keep in mind that this is only true for x
not equal to x prime. तो अब तक हम काम कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, लेकिन यही काम हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं, और उसके लिए बस ये करना होगा कि आपको जो डेल ऑपरेटर है ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना होगा. इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट that is r, theta and phi, del square phi, of course in this case phi depends on space but radial component, 1 over r square partial over partial r square partial over partial r and phi. So this is a radial part, by the way. बाकी मैं जो जो एंगुलर पार्ट है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कि if potential depends only on radial components, so other two part would be 0. और इसी चीज को मैं एक और अंदाज से भी लिख सकता हूँ. del square phi of r 1 over r partial square over partial r square and r into phi of r. इसके ऊपर आप u into v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, therefore you will be the same previous equation as well. And as we already know that potential in terms of spherical polar coordinates k q over r. So if you substitute this potential here in this equation, so del square phi would be 1 over r partial over partial r square and r k q over r. अब यहाँ से अगर आप ये देखें तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, so you left with a constant term in the parenthesis and the derivative of the constant would be 0, therefore this equation leads to 0. So in fact this is Laplace equation in spherical polar coordinates. But keep in mind this is true for r does not equal to 0. I mean, other than origin, this equation holds. Now, what happened when r is equals to 0? The same equation can be written as previously, that del square phi x is equals to k rho of x prime del square 1 over x minus x prime del x prime. ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी है? इनफैक्ट यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है बिकॉज phi is equals to
raw of x prime or x minus x prime into dx prime। तो जब मैं इस फाई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डेल स्क्वायर इनफैक्ट सिर्फ अप्लाई होगा वेरिएबल पे k, और ये जो रॉ है ये कांस्टेंट है, सो दैट वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द डेल स्क्वायर। सो द ओनली वेरिएबल इज 1 over x minus x prime। तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया है कि जो ये वाला जो पार्ट है, I mean this is part, this can be written as in terms of the delta function, del square phi of x k x prime minus 4 pi delta of x minus x prime and dx prime। और इनफैक्ट अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लूँ, कांस्टेंट को बाहर निकाल लूँ, इनफैक्ट माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो दिस वुड बी माइनस 4 पाई k रॉ ऑफ x prime delta x minus x prime into delta cube x prime। यहाँ पे डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को along with a delta function and delta function defined at x is equals to a into dx, so you can simply write the whole integral in terms of you just replace a function of x with a constant जहां पर डेल्टा फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक फंक्शन है जो कि x प्राइम पर डिफाइन हो रहा है, and the delta function in fact is also written as x minus x prime। तो यहाँ पर आप बस x prime coordinate को replace कर देंगे x से, so that we have delta square over phi of x minus 4 pi k, ये हो जाएगा, the whole integral would be del of x। So I mean you can see here this is the Poisson equation।